again, a very good morning to all of you. We are starting our class with the topic interdependence between micro and macroeconomics. We were on chapter number first of microeconomics. Yesterday we have completed the topic difference between micro and macro, and today we will study how these both branches of economics, which are opposite, how these are interdependent. Both are interdependent, both are incomplete without one another. So we will discuss the interdependence in our today's class. Have a look. What is written over here? Who will read? Who will read the topic? Yes, Khushi Gupta, start reading. Khushi Gupta. मैम मैं करण गुप्ता हूँ मैम। मैं लैपटॉप से ज्वाइन किया तो मैम इसमें मेरी बहन का नाम लिखा हुआ था। अच्छा, आपने नेम चेंज नहीं किया है। ओके करण। लक्ष्य मोदी। गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning, beta. Read this paragraph. Economy is a single subject and the analysis of economy cannot be split into two compartments. It means the microeconomics and the macroeconomics are not Independent. Okay, there is some independent of disturbance. the Okay, Lakshya, okay. Have a look. What is written over here? Just I'm reading it for you. Economics is a single subject and the analysis of an economy cannot be split into two watertight compartments. यानी economics एक common subject है. माइक्रो और मैक्रो इसी सब्जेक्ट के दो पार्ट है, तो आप इनको दो पार्ट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते. It means microeconomics and macroeconomics are not independent of each other. There is much common ground between the two. यानी माइक्रो और मैक्रो इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस है, दोनों में बहुत ज्यादा कॉमन चीजें हैं. बोथ माइक्रो एंड मैक्रो आर इंटरडिपेंडेंट, आपको याद रखना है. इंडिविजुअल और एग्रीगेट हमेशा इंटर रिलेटेड रहेंगे जब भी हम माइक्रो और मैक्रो की बात करेंगे. अब देखिए हमें क्या पढ़ना है. हमें पढ़ना है कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो पे डिपेंड है, और फिर हमें पढ़ना है कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो पे डिपेंड है. दोनों इंडिविजुअल नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है. So firstly, we will discuss how the branch of microeconomics depends upon the macroeconomics. So have a look. What is written over here? Microeconomics depends upon macro. कैसे depend करती है ये देखिए. Micro का एक law है, law of demand. Law of demand individual consumer पे applicable होता है, हम सब पे applicable होता है. जैसे क्या कहता है ये law? That when prices of commodities increases, we the consumers start demanding less of any commodity. Simple logic है. Whenever price of any commodity increases, we as a consumer start demanding less of such commodity. तो ये जो law बना एक individual consumer के लिए, इसको बनाने से पहले सबकी research तो की होगी, सबकी रिसर्च की, तभी तो मुझे पता चला कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का ये रिएक्शन है. अगर मैं बात करूं कि मैंने क्लास की कॉपीज चेक की और एक्स नाम का स्टूडेंट क्लास का टॉपर है, तो ये एक्स नाम का स्टूडेंट क्लास का टॉपर पता मुझे कैसे चला? जब मैंने बाकी सबकी स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक की और इसके मार्क्स को बाकी सभी से कंपेयर किया. यानी हमेशा आपको इंडिविजुअल बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए भी ग्रुप पे डिपेंड होना पड़ता है. मैं अगर कहूँ कि राहुल नाम का स्टूडेंट थोड़ा सा लेजी है, तो अब ये लेजी कैसे है, मुझे इसको बाकियों से कंपेयर करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि ये लेजी है, राइट? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंडिविजुअल को पढ़ने के लिए मैं एग्रीगेट पे डिपेंड हो गई. नाउ हैव अ लुक. सिंपली इट इज रिटन ओवर हियर. Law of demand came into existence from analysis of behavior of a group of people. यानी जितनी भी इंडिविजुअल फैक्ट्स आप लेके आते हैं, वो फैक्ट्स आप तभी ला पाते हैं जब आप ग्रुप ऑफ पीपल का एनालिसिस करते हैं. विदाउट एनालाइजिंग द ग्रुप यू वॉन्ट बी एबल टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ एनी इंडिविजुअल पीपल, राइट? नाउ हैव अ लुक. सेकंड पॉइंट. Yesterday we have discussed that the main focus of microeconomics is determining the prices of commodity.
I have also given you the question as a fill up, right? So what is written over here? Price of a commodity is influenced by general price level prevailing in the economy. It means एक individual commodity की जो rate है वो general price level पे depend करेगी. मैं बात करूं कि पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, तो पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे और दूसरे रीजंस, यानी माइक्रो के पीछे मैक्रो हो सकती है. तो हमने 2 पॉइंट्स कंप्लीट किए. पॉइंट नंबर 1, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉइंट नंबर 1 वी हैव डिस्कस्ड दैट लॉ ऑफ डिमांड केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली बाय एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप. एंड नंबर 2, price of any individual commodity is always influenced by general price level. Next, what we are going to discuss is how macroeconomics depends upon micro. पूरा ग्रुप इंडिविजुअल पे कैसे डिपेंड करता है. तो आप देखिए, पूरे ग्रुप की स्टडी करने के लिए एक एक इंडिविजुअल की स्टडी तो करूंगी ना. अगर क्लास के एवरेज मार्क्स निकालने हैं तो बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स मुझे इंडिविजुअल मार्क्स तो चाहिए होंगे. इट मींस अगर आपको एग्रीगेशन करना है तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होगी. हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर. फर्स्ट पॉइंट, national income of a country is nothing but the sum total of income of individual units in the country. नेशनल इनकम क्या है? एक एक इंडिविजुअल ने जो इनकम अर्न की उसका एडिशन ही तो नेशनल इनकम है. हमारी कंट्री की टोटल इनकम किससे बनेगी? हमारी कंट्री के एक एक इंडिविजुअल की इनकम से. सो आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पॉइंट फॉर यू. सेकंड, एग्रीगेट डिमांड. मैक्रो का इंपॉर्टेंट टूल होता है एग्रीगेट डिमांड. It depends upon the demand of individual households of the economy. इकोनॉमी के इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स की जो डिमांड है उसी से मिलके एग्रीगेट डिमांड बनता है. So we have discussed how micro depends upon macro and how macro depends upon micro. Anyone, any doubt? If yes, you can raise your hand and ask me. In case you are having any confusion up to this part, you can ask me. Yes, Karan. मैम मेरे को मैम ये समझ नहीं आया मैक्रो माइक्रो पे कैसे डिपेंड हो रहा है. मेरे को मतलब समझ नहीं आया दोनों पॉइंट. अभी समझाते हैं बेटा. हैव अ लुक. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी पूरी क्लास के मार्क्स देखती हूँ तो वो मैक्रो हो जाता है क्या? आपके इंडिविजुअल देखती हूँ तो माइक्रो और सारी क्लास के देखती हूँ तो मैक्रो. बताइए यस और नो. यस मैम. यस. तो अब आप मुझे ये बताइए, पूरी क्लास के मार्क्स देखने के लिए क्या मुझे एक एक इंडिविजुअल के मार्क्स नोट करने पड़ेंगे? यस मैम. इट मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको माइक्रो की स्टडी करनी पड़ेगी, राइट? यस मैम. अब देखिए, इसको बुक के एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 आपको कह रहे हैं नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ कंट्री. ये आपको मेंशन कर रहे हैं कि नेशनल इनकम में आपने क्या किया. आपने इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट्स की जो इनकम है, हम सबकी जो इनकम है, यानी कि इंडिविजुअल यानी कि माइक्रो, हमने उनका एग्रीगेशन कर दिया एंड द एग्रीगेशन इज ट्रीटेड एज नेशनल इनकम. सो इट मींस फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वी हैव जस्ट एडेड अप द इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. Means for reaching at the aggregation of macro level we have used the micro study. Number 2 आपको कह रहे हैं aggregate demand which is a tool of macroeconomics. This aggregate demand always depends upon the demand of individual households. Aggregate यानी पूरी कंट्री में कितनी डिमांड हो रही है. तो पूरी कंट्री में जो डिमांड है वो हम सभी की डिमांड मिला के ही तो बनी है. That's why aggregate demand is always dependent upon the demand of individual households. So is it okay, Karan? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, क्वाइट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा न्यू है, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा. माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सेस. क्या लिखा हुआ है? माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सेस. पैराडॉक्स का यहाँ पे मीनिंग है ऐसी सिचुएशन जिसमें ये दोनों काफी बार कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज प्रेजेंट करते हैं. contrasting view present करने का मतलब है many times the things which are better for microeconomics may be harmful from macro point of view. मेरे इंडिविजुअल के लिए जो चीज बहुत बेनिफिशियल है, हो सकता है वो मैक्रो लेवल पे बेनिफिशियल नहीं हो.
और काफी बार मैक्रो लेवल पे जो चीजें बेनिफिशियल है हो सकता है वो माइक्रो लेवल पे हार्मफुल हो। एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये 2 एग्जांपल्स मैं डिस्कस करूंगी, देन आफ्टर यू विल बी गिविंग सम एग्जांपल्स। हैव अ लुक, ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल नंबर 1 को ध्यान से सुनिएगा, पहले थ्योरी रीड कर रहे हैं, उसके बाद में आई विल बी गिविंग यू एग्जांपल्स। व्हाट इज रिटन ओवर हियर? Paradox is a seemingly absurd or contradictory statement, though often a true statement. ये कह रहे हैं पैराडॉक्स का मतलब एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट, कि मैं जो कह रही हूँ वो मेरे लिए सही है लेकिन वही सेम चीज आपके लिए गलत है। बात तो सच है लेकिन मेरे लिए सही और आपके लिए गलत। ठीक है, आगे देखिए। Sometimes there are paradoxes seen in micro and macro activities. अब यहाँ से इजी लैंग्वेज यहाँ है, आप देखिए। It means an act which is beneficial for an individual may prove to be harmful for the economy as a whole. कोई एक काम हो सकता है एक इंडिविजुअल के लिए तो बेनिफिशियल हो, लेकिन वो पूरी इकोनॉमी को जब हम ऑब्जर्व करें तो उसके लिए हार्मफुल क्रिएट हो जाए। या कुछ पूरी इकोनॉमी के लिए तो बेनिफिशियल हो लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए हो सकता है हार्मफुल प्रूव हो जाए। एग्जाम्पल दिया हुआ है। If an individual saves, his family will be benefited. But the whole economy starts saving, there will be a contraction of demand, output, employment and income. As a result, whole economy will suffer. बहुत बड़े लेवल पे ये एग्जाम्पल है। देखिए, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग किया तो इज इट अ माइक्रो कंसेप्ट और मैक्रो कंसेप्ट? लेट मी नो भारती। If I am saving at my individual level, is it a microeconomic concept or macroeconomic concept? मैम माइक्रो। Microeconomic concept, very good. So have a look, क्या कह रहे हैं? मैंने माइक्रो लेवल पे सेविंग की, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि मैंने सेविंग की तो मेरी फैमिली को उस सेविंग से हेल्प होगी। बट आप सोचिए, अगर इकोनॉमी के सारे लोग सेव ज्यादा करेंगे और कंजप्शन कम करेंगे तो मार्केट में डिमांड कम होने लग जाएगी। ये डिटेल्ड कंसेप्ट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, या तो सिंपल छोटा सा एग्जांपल दिया है। अगर हम सब अपनी इनकम में से ज्यादा पोर्शन सेव करने लगेंगे तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन कम करेंगे, और प्रोडक्शन कम करेंगे तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम तो इनकम कम। और ये साइकिल जब चलेगी तो हमारी पूरी इकोनॉमी एडवर्स तरीके से सफर करेगी। यानी माइक्रो लेवल पे तो सेविंग बहुत बेनिफिशियल रही, बट द सेम सेविंग इज हार्मफुल एट मैक्रो लेवल। वही सेम चीज मैक्रो लेवल पे क्या हो गई? हार्मफुल हो गई। एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से समझिए। ये आपसे रिलेटेड है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हैव अ लुक। सपोज हम बात करते हैं करण गुप्ता की, ठीक है। अब देखिए, हम ऑफलाइन क्लासेस में चल रहे हैं और करण के घर पे शादी है, करण के बड़े भैया की शादी है। भाई करण उस मैरिज फंक्शन में बहुत बिजी हो गया है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे सुने ध्यान से। हमने स्कूल में माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। जब करण 7 डेज की लीव पे चल रहा था, शादी के लिए उसने लीव ली थी, तो हमने क्या किया था? हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर कंप्लीट भी हो गया। I have given you the revision also and I have taken a practice test also, और क्लास के सभी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। It means all of you have prepared this chapter by yourself, आपकी प्रिपरेशन डन है। अब आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं बहुत जल्दी और आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर 3 और 4 रिवाइज करवा दिया जाए। बट करण जब स्कूल आता है तो करण मुझे कहता है, मैम प्लीज आप मुझे चैप्टर 5 वापस करवा दीजिए क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। I don't know anything about this chapter, so I want your time in the class. मुझे आप ये चैप्टर करवा दो। अब देखिए, मैंने क्या किया? मैंने करण की बात मान ली और करण को चैप्टर 5 करवाना स्टार्ट कर दिया। अब ये करण को मैं चैप्टर 5 करवा रही हूँ, तो जल्दी से जानवी लेट मी नो, इज इट अ माइक्रो कंसेप्ट और मैक्रो कंसेप्ट? जल्दी से बता दीजिए। माइक्रो। माइक्रो। क्यों माइक्रो है? क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल को करवा रही हूँ, राइट? सो हैव अ लुक। अब मैंने करण को चैप्टर करवाना शुरू किया, तो आप मुझे बताइए बाकी की क्लास जिनके अच्छे मार्क्स आ गए उनके लिए इज इट बेनिफिशियल और हार्मफुल? पूजा लेट मी नो।
होगा क्योंकि मैम उनका 3 और 4 का रिवीजन नहीं हुआ था। बिल्कुल, क्योंकि वो चाहते थे 3 और 4 का रिवीजन हो। अच्छा ये बताइए करण, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा? यस मैम, ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा मैम। वेरी गुड। चलिए अब मुझे कौन एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो माइक्रो लेवल पे बेनिफिशियल था वो मैक्रो लेवल पे बेनिफिशियल नहीं हुआ? प्रवीण अग्रवाल, एक्सप्लेन दैट पार्ट। मैम एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अभी की केस स्टडी से आपको एनालाइज करना है, अभी जो मैंने करण गुप्ता वाला एग्जांपल लिया, you have to let us know that the thing which is beneficial for micro level is harmful at macro level. Is it true? Okay, no issues. Tanishka will let us know. Yes, Tanishka. गुड मॉर्निंग मैम। Yes, morning, ma'am. beta, you are audible now. गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning, Tanishka. यस मैम। सो हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है क्योंकि हमारे आगे के चैप्टर्स नहीं हो रहे। बिल्कुल, लेकिन करण के लिए वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा करण के यूजफुल है। बिल्कुल। देखिए, इट मींस हमने इसको प्रूव कर दिया है कि काफी बार ऐसा होता है माइक्रो लेवल पे। अब काम तो मैंने सही किया, चैप्टर पढ़ाया तो मैंने अच्छा ही काम किया, कुछ बुरा काम तो नहीं किया, लेकिन ये अच्छा काम हो सकता है माइक्रो लेवल पे तो बेनिफिशियल हो, लेकिन मैक्रो लेवल पे उतना हेल्पफुल नहीं हो। बाकी बच्चे सोचेंगे हमारी तो आज की इकोनॉमिक्स की क्लास वेस्ट हो गई। क्यों वेस्ट हो गई? क्योंकि हमने क्या किया, हमने तो जब देखा कि चैप्टर हमारा कंप्लीटेड था तो हम तो स्कूल आए ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। हमने तो इस चैप्टर का टेस्ट ऑलरेडी दे दिया है। अब एक और स्टेटमेंट, अब हम प्रूव करते हैं समथिंग व्हिच इज बेनिफिशियल एट मैक्रो लेवल मे बी हार्मफुल एट माइक्रो लेवल। लॉकडाउन की बात करते हैं। आप सभी ने न्यूज देखी होगी कि हमारे राजस्थान में 24 तक का, यानी 14 मई तक का, 14 डेज का कंप्लीट लॉकडाउन लग गया है। क्या मैं कह सकती हूँ कि ये लॉकडाउन मैक्रो लेवल पे बेनिफिशियल रहने वाला है? क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कोविड केसेस कंट्रोल में आ जाए। तो ये लॉकडाउन मैक्रो लेवल पे इट विल बी बेनिफिशियल। नाउ कैन एनीवन टेल मी हाउ इट विल बी हार्मफुल एट माइक्रो लेवल? बी क्विक। मैक्रो पे बेनिफिशियल है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। हाउ इट इज हार्मफुल फॉर माइक्रो लेवल? यस, लक्ष्य विल टेल अस। यस लक्ष्य। उनकी इकोनॉमी भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। अगर हम बात करें, चलिए और भी एक दो आंसर्स ले लेते हैं। यस याशिका। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम ये मैक्रो लेवल पे तो बेनिफिशियल होगा क्योंकि ये शायद कम कर दे केसेस को, लेकिन माइक्रो लेवल पे मैम जो डेली वेजेस पे डिपेंडेंट हैं लोग, उन लोगों के लिए ये बहुत हार्मफुल होगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। जो डेली वेजेस पे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, डेली वेज अर्नर्स को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। तो हमने क्या पढ़ा? द थिंग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैक्रो मे बी हार्मफुल एट माइक्रो लेवल एंड द माइक्रो लेवल बेनिफिशियल थिंग्स मे बी हार्मफुल फॉर मैक्रो लेवल। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ हैव अ लुक लास्ट टॉपिक ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, देन आफ्टर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू टॉपिक। विच इज मोर इम्पोर्टेंट, माइक्रो और मैक्रो? क्या आपके पास इसका आंसर हो सकता है? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल को स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्रीगेट यूनिट्स को स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यस करण, आपको क्या लगता है बेटा? ओके, प्रवीण विल टेल अस। यस प्रवीण। मैम दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट वन अनदर। हम माइक्रो तब तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक हमने मैक्रो नहीं किया, और हम मैक्रो नहीं पढ़ पाएंगे बिना माइक्रो के। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक इकोनॉमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर। Both microeconomics and macroeconomics have a place of their own.
and none of them can be dispensed with. यानी दोनों की अपनी अपनी जगह है, हम किसी को भी एक को प्रायोरिटी पे नहीं रख पाएंगे. Microeconomic concentrates on the working of the individual components and macroeconomic studies the economy in general. Micro तो individual components को पढ़ रही है और macro क्या पढ़ रही है? General economy को पढ़ रही है. While the former is concerned with structures of aggregate, the latter is concerned with aggregates themselves. Former यानी जो पहले नाम आया, पहले कौन सा आया? Micro. तो ये कह रहे हैं माइक्रो तो एग्रीगेट्स के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से डील कर रही है. मैक्रो बनाने के लिए जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर चाहिए उनकी बात आपने माइक्रो में कर ली, जबकि मैक्रो अपने आप में एक एग्रीगेट है. नाउ हैव अ लुक. So both the approaches are supplementary to each other. The superiority of one approach over other cannot be claimed. It means both micro and macro are important. किसी एक को you can't prove superior than other. Now have a look. Last topic of micro and macro. Need for a separate theory of macroeconomics. ये बोल रहे हैं जब आप इंडिविजुअल से ग्रुप को पढ़ सकते थे तो ग्रुप की थ्योरी बनाने की कहाँ जरूरत थी. तो ये यहाँ पे कह रहे हैं microeconomics failed to study the aggregates of the economy as a whole. As a result, there was a need for a separate theory which could explain the working of economy. Macroeconomics helps to understand the working of an economic system as well as to explain the various macroeconomic paradoxes. ये कह रहे हैं जब हम माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे थे तो हमें एग्रीगेट लेवल का नॉलेज नहीं हो रहा था. अब वो एग्रीगेट लेवल का नॉलेज हमारे लिए बहुत जरूरी था, इसलिए हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी बनाई ताकि हमें पता चले एग्रीगेट लेवल पे इनकम का क्या कंडीशन चल रही है, एग्रीगेट लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, एग्रीगेट लेवल पे लोग कितना कैसे कैसे अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं. नाउ हैव अ लुक. Two broad branches of economics, that is number 1 microeconomics or price theory, number 2 macroeconomics or income theory. These are basically the two main branches of economics. Now have a look. हमने माइक्रो और मैक्रो में क्या क्या पढ़ा है, ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए. Number 1 we have discussed the meaning of micro and macro. माइक्रो और मैक्रो अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है. First part was meaning along with some examples. Second part was difference between both micro and macro. Third part was interdependence between both micro and macro का interdependence. तो ये तीन main topic है. Number 4th part was we have discussed the micro macro paradoxes. Paradoxes means some situations may be beneficial for micro but harmful for macro level, right? Then after the last topic we have discussed the need for separate theory of macroeconomics. Micro macro में हमने ये इतना concept पढ़ लिया है. अभी आगे देखिए, चैप्टर का हाफ पार्ट हुआ है. अभी हम कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर 50% हुआ है. अभी आगे देखिए, नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. ये मेन रीजन है जिसकी वजह से आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं. हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है. हैव अ लुक. What is written over here? Central problems of an economy. These are the problems which are faced by each and every economy. दुनिया में जितनी भी economies है, जितनी भी countries है, जितने भी producers है, all of them are facing a common problem, that is central problem of an economy. It includes 3 main problems. We will discuss it. Before that, let's read the part from book. Production, distribution, and disposition of goods and services are basic economic activities in life. It means if we talk about producers, 3 main activities they are performing. Number 1, they are producing goods and services. Number 2, they are distributing things. Number 3, they are engaged in disposition of goods and services. Means selling the goods and services to consumers. These are the basic economic activities. Now have a look. In the course of these activities, every society has to face scarcity of resource. In activities को perform करते time, we all are facing the problem that is resources are scarce. Along with being scarce, the resources are also having alternative uses. Now have a look. Because of the scarcity, every society has to decide how to allocate the scarce resources.
स्कैर्सिटी की वजह से हर सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि इन रिसोर्सेस को कैसे अलोकेट करना है। अलोकेट मीन्स कैसे इन रिसोर्सेस को अलग अलग यूज पे लगाना है। तो जो मेन प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं while producing goods and services are these three problems. Number one, what to produce. क्या बनाया जाए? If I'm a business organization, if I'm an owner of business organization and I have planned to produce some goods and services, so the first question in my mind will be, what type of goods and services can I produce? बहुत सारे options है ना, clothes बना सकती हूँ, food grains बना सकती हूँ, books बना सकती हूँ, furniture बना सकती हूँ. What will I produce? तो ये मेरा पहला question आएगा. Number two, how to produce? How will I produce? There are basically two techniques of production. Technique number one, labor intensive, and technique number two, capital intensive. So here we have to decide about the technique of production also. Number three, for whom to produce? किसके लिए बनाए? There are two sections of the society. Number one, the richer section, and number two, the poor section. So we need to decide that our goods and services will be available for which section of society. So just learn this part. There are three main problems of an economy. Name the problems by yourself. Problem number one, what to produce. Problem number two, how to produce. And problem number three, for whom to produce. Repeat it once again. Problem number one, what to produce. Problem number two, how to produce. And problem number three, for whom to produce. These problems are called central problems because these are the most basic problems of an economy. And all other problems revolve around them. ये most common problems है और बाकी सारी problems इन्हीं problems के आसपास revolve होती रहती है. इन्हीं problems से related हमारी बाकी सभी problems हैं. अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं. Allocation of resources studied under microeconomics. Microeconomics में जब हम इस allocation of resources को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Allocation of resources refers to the problem of assigning the scarce resources in such a manner so that maximum wants of society are filled. क्या कह रहे हैं ये? Resources को allocate करने का मतलब है जो हमारे limited resources हैं उनको लोगों के बीच में इस तरीके से असाइन कर देना कि हमारी मैक्सिमम वांट्स फुलफिल हो जाए. हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ा था ना, rational management of limited resources. How will uses in order to get maximum satisfaction of human wants. तो यही यहाँ पे कर रहे हैं ना, हम rational management कर रहे हैं अपने scarce resources का in a manner that we get our wants fulfilled in a maximum way. आगे देखिए. As resources are limited in relation to unlimited wants, it is important to economize their use. Raise your hands. Who will let me know the meaning of economizing the use? क्या meaning होता है economizing their use का? Yes, Falguni. Economizing of resources refers to making optimum use of available resources. Very good. Economizing the resources means making the optimum utilization of resources available with the society. So यहाँ पे भी हमने क्या कहा that there is a need that we should economizing